اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں ہم نے 1.5 پارہ کی تلاوت سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام صاحب کا قرآن مقدس پڑھنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لے۔ چونکہ ابتدائی روزہ کی نماز تراویح میں منزل نہ ہو سکی، اس لحاظ سے ابھی تھوڑا سا منزل کا سلسلہ طویل جا رہا ہے۔ 1.5 پارہ انشاءاللہ آگے تھوڑے دنوں میں چل کر معمول پہ آ جائیں گے، اور جہاں تک خلاصہ کی بات ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک ترتیب سے حملے کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ چونکہ قرآن مجید کا معاملہ ہے اور قرآن مجید کا بے اعتبار تفسیر کے حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ تفسیر نہیں اور یہ خلاصہ تفسیر بھی نہیں، بس یہ قرآن مجید کے مضامین کے اشارے ہیں۔ مضامین کے اشارے ہی اگر ہمیں سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کا ایک لب لباب اور نچوڑ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا، اس سے مزہ دو بالا ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے سننے کی لذت الگ، اجر الگ، اور ساتھ ہی اس کے سمجھنے کی لذت الگ اور اجر و ثواب بھی الگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، مجھے بھی، آپ سب کو کامل اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، منزل تو ہماری آگے چلی گئی، لیکن پیچھے کچھ مضامین تھے، ان کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھوں گا۔ 2 پارہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 پارہ کے گویا 2 رکوع کے اندر ہر مسلمان کو اپنے اخلاق سنوارنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اخلاقیات یہ آدھا دین ہے، عبادات آدھا دین ہے اور اخلاقیات آدھا دین ہے۔ تو اخلاق سنوارنے کے لیے کن کن امور کو لینا ضروری ہے اور اپنانا ضروری ہے، تو قرآن مقدس نے اس مقام پر آیت نمبر 152 کے اندر 3 امور کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میرے اخلاق عالی ہو جائیں، میرے اخلاق سنور جائیں، چلے اس عنوان کے ساتھ ایک میں عنوان اور ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے اس آیت کے ساتھ کچھ آگے چلے تو کل ملا کے 5 اصول بیان فرمائے قرآن مجید نے۔ اخلاقیات کو سنوارنے کے 5 اصول ہیں، جو مسلمان بھی ان 5 اصولوں پہ عمل پیرا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اخلاق کا مالک بنا دیں گے۔ پہلا اصول ہے کہ ذکر الہی سے دل غافل نہ ہو۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم مجھے اکیلے میں یاد کرو گے، میں تمہیں اکیلے میں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے کسی مجلس میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، معلوم یہ ہو گیا کہ ذکر الہی سے دل جیتا ہے، اور ذکر الہی سے غفلت ہو جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اور غافل دل اور مردہ دل کے اندر لازمی بات ہے اندھیرا آئے گا۔ جہاں اندھیرا آئے گا وہاں بد اخلاقی آئے گی، ہاں جی، وہاں اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو ذکر الہی سے غفلت برتنے والوں کو یہاں تنبیہ فرمائی۔ اور دوسرا اصول کیا ہے اخلاق سنوارنے کا؟ شکر الہی۔
اللہ تعالیٰ نعمتیں فرمائیں، اور یقیناً ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے پناہ انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو فرمایا ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی آیت میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پہلے ذکر الہی پھر شکر الہی، یعنی اللہ کا ذکر بھی کرو اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہترین اخلاقیات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلے تو فرمایا کہ جب ذکر و شکر کا معاملہ آئے گا تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق بننا شروع ہو جائے گا۔ جب اللہ سے تعلق بنے گا تو پھر حالات آنا شروع ہو جائیں گے، آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر کرنا ہے۔ تیسرا اصول کیا ہے جی؟ اخلاق سنوارنے ہیں تو صبر کرو، حالات آئیں گے۔ یا اللہ صبر کیسے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد مانگنی ہے کس چیز کے ذریعے؟ فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے۔ چنانچہ ایک امر یہاں صبر ہے، حالات آئیں تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ کیوں کہ بے صبری یہ اللہ کی شکایت ہوتی ہے، اور جب اللہ کی شکایت ہو جائے تو انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے، انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چوتھا امر بیان کیا استعانت، یعنی جتنے بھی حالات آ جائیں، جیسے بھی حالات آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط رکھو اور اللہ تعالی سے مدد مانگ مانگ کے چلو۔ واستعینوا استعانت ہے، واستعینوا کس سے مدد مانگنی ہے جی؟ جیسے بھی حالات آ جائیں اللہ ہی کے در پہ رہنا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پر نہیں جانا، اللہ ہی سے غائبانہ حاجات میں مدد مانگنی ہے۔ مسئلہ معلوم ہو گیا یہاں اشارہ کہ اللہ ہی سے ہر حال میں تعلق قائم رکھ کر مدد کا سوال کرتے رہنا یہ اعلیٰ اخلاق ہیں، اور اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کی پکار میں لگ جانا پرلے درجے کی بد اخلاقی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے اخلاقیات بگڑ، ایمان بگڑا تو اخلاق بگڑ جائیں گے میرے بھائیوں۔ اور ساتھ ہی آگے چل کر اسی رکوع کے اندر پانچواں امر بیان کیا کہ اگر اخلاق سنورنا چاہتے ہو شعائر اللہ کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو مقدسات بنایا ہے، مقدسات الہیہ کی توہین سے بچو۔ جو اللہ کی مقدسات کی توہین کرتا ہے وہ اخلاقیات سے گر جاتا ہے۔ قرآن اللہ کی مقدسات میں سے ہے، مساجد اللہ کی مقدسات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اللہ تعالیٰ کے مقدس ہیں، ایسے ہی بیت اللہ اللہ کی مقدسات میں سے ہے۔ شعائر اللہ میں فرمایا اگلے اسی رکوع میں چل کر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ اللہ کے شعائر ہیں، مقدسات الہیہ ہیں، ان کا احترام رکھو، ان کا ادب رکھو۔ ظاہراً تو وہ خشک پہاڑیاں ہیں، لیکن اس لیے کہ ان کی نسبت بہت عالی ہے لہٰذا ان کا ادب لازم ہے۔ تو با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے جو با ادب ہوگا وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، اور جو ادب سے ہٹے گا وہ اخلاق سے گرے گا۔ 5 امور بیان فرمائے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اخلاقیات کو سنوارنے کے 5 امور ہیں۔ پھر اس کے بعد چونکہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا کہ حالات جیسے بھی آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ سے تعلق بنا کے رکھنا ہے۔ اللہ سے حالات سازگار ہوئے تمہارے حالات سازگار ہوں گے، اللہ سے حالات بگڑ گئے تمہارے حالات کبھی سنور سکتے؟ آج میرے بھائیوں ہم در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ گواہ ہے ہمارے اللہ سے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اللہ سے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اگر اپنے حالات بنانے ہیں پہلے اللہ سے تعلقات بنانا ہوں گے، اس لیے کہ حالات کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سے تعلقات کی فکر کریں گے، ہمیں اپنے حالات کی فکر نہیں کرنا پڑے گی۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ دعا مانگو لیکن 2 اصولوں کے تحت۔ پہلا اصول کیا ہے؟ دعا خالص اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ کس سے مانگنی ہے بھائی؟ ہاں اللہ ہی سے مانگنی ہے، اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس لیے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا قبول بھی
करता हूं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला गाफिल नहीं, अल्लाह गफलत से पाक हैं, अल्लाह नींद नहीं करते, अल्लाह नींद और ऊंघ से पाक हैं। फरमाया कोई आधी रात को उठ के आए, इज़ा दान, इस्तेमरार है, इज़ा दान, फरमाया तुम्हारी मर्जी पे छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हें ही ज़रूरियात लाहिक होती हैं, इतनी बड़ी मखलूक है, किसी लम्हा कोई ज़रूरत में मुब्तला होगा, किसी लम्हा कोई मुसीबत में मुब्तला होगा। इज़ा दान, तुम जब चाहो आओ, मेरा दर 24 घंटे तुम्हें खुला मिलेगा। फरमाया मेरा दर कभी बंद नहीं होता। तो पहला उसूल क्या है दुआ का मेरे भाई? दुआ मांगे खालिस, हाँ, अल्लाह से खालिस, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? नफी शिर्क फिद दुआ। अल्लाह ताला पुकार के मसले में बोलिए वहदहू ला शरीक हैं। और दूसरी शर्त क्या है दुआ के कबूल होने की? फरमाया वल युमिनु बी, जब भी मांगो कामिल यकीन से मांगो, जब भी मांगो कामिल यकीन से मांगो कि मैं उस जात से मांग रहा हूं जिसके कब्ज़े कुदरत में सारे खजाने हैं, मैं उस जात से मांग रहा हूं कि जिसको देने में किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी से इजाजत लेना नहीं पड़ती है, और मैं उस जात से मांग रहा हूं जो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। इस यकीन से मांगो तो फरमाया मैं अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। फिर मेरे भाइयों दूसरे पारे में आगे हम चलते चलेंगे तो साथ ही इस्लामी रियासत के जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां बयान की गई हैं। यूं आसान अल्फाज में कहूं, रियासत मदीना के वाली की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? रियासत मदीना, समझ आ गई है? सिर्फ खोखले नारे लगाकर कौम को लड़ाकर रियासत मदीना कभी नहीं बनती मेरे भाइयों, याद रखना। रियासत मदीना की जिम्मेदारियां हैं, रियासत मदीना के नारा लगाने वाले हुक्मरानों की कुरान ने यहां जिम्मेदारियां बयान फरमाई हैं। पहली जिम्मेदारी, ए हुक्मरानों अपनी रियाया की जान की हिफाजत करो। कितनी जिम्मेदारियां हैं जी? 3 जिम्मेदारियां अर्ज करूंगा। अपनी रियाया की, बोलो भाई, जान की हिफाजत करो। ए इस्लामी रियासत के हुक्मरानों अपनी रियाया के माल की हिफाजत करो। ए इस्लामी रियासत के हुक्मरानों फरमाया अपनी कौम के दीन की हिफाजत करो। कैसे रियासत मदीना वजूद में आती है? उस इलाके और उस मुमलिकत के बासियों की जान भी महफूज हो जाए, माल भी महफूज हो जाए और दीन भी महफूज हो जाए। जहां इन 3 चीजों में से कोई एक चीज भी गैर महफूज होगी तो वो रियासत मदीना कहलाने के काबिल नहीं है। अब खुद देखें आईना लगा के क्या चल रहा है और क्या होने लगा है। चुनाचे सबसे पहले हुक्मरानों को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हें अपनी रियाया की जान की हिफाजत करनी है। जान की हिफाजत के लिए किसास का मसला बयान फरमाया। कौन सा मसला है जी? किसास का मसला बयान फरमाया कि अगर कोई किसी को बेगुनाह कत्ल कर देता है, ये यहां पीछे मसला आया वाला, हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, ए ईमान वालो मक़तूलों का बदला लेना तुम पर फर्ज किया गया है। किसास लो, और किसास लेना हर बंदे की जिम्मेदारी नहीं, किसास लेना किसकी जिम्मेदारी है? मुसलमान हुक्मरान की जिम्मेदारी है। मुसलमान हुक्मरान को चाहिए कि वो कातिल को गिरफ्तार करे और उसका मामला मकतूल के वरासा पर पेश करे। अगर वो उसको मुआफ करना चाहें, मुआफ कर दिया जाए। खून बहा यानी दियत लेना चाहें, दियत लेके छोड़ दिया जाए। और अगर वो उससे बदला लेना चाहते हैं तो फिर हुक्मरान की यह जिम्मेदारी है, उस पर यह फर्ज किया है अल्लाह तबारक व तआला ने कि फरमाया मदीना के रियासत का हाकिम, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कातिल को बदले में क्या करे? कत्ल करे। इससे क्या होगा? वालकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, फरमाया अकल वालो ये मत समझना कि बंदा मार दिया जाएगा, ज्यादती हो जाएगी। फरमाया नहीं, इस क़िसास और बदले के अंदर तुम्हारी जिंदगी है। क्या मतलब? एक कत्ल होगा, हजारों जिंदगियां महफूज हो जाएंगी। अब कातिल को अपना अंजाम जब दिख रहा है तो कल कला कोई किसी की जान लेने की कोशिश करेगा, उसको पता है अगले लम्हे मुझे खुद उड़ा दिया जाएगा, इसलिए कई जिंदगियां महफूज हो जाएंगी। तो यहां क्या है? फरमाया इस्लामी रियासत के हुक्मरान की पहली जिम्मेदारी क्या है कि रियाया की
सबक याद रहेगा इंशाअल्लाह। ये है क्या इशारिये हैं मोटे मोटे सूरत के, ताकि यह है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, हम अमल करने वाले बन जाएं उस पर इंशाअल्लाह। इस नीयत से हम बात सुने मेरे भाई। और दूसरी जिम्मेदारी क्या है कि माल महफूज करो, माल महफूज होना चाहिए जी। माल कैसे महफूज होगा? फरमाया वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक तो एक दूसरे का माल बातिल और हराम तरीके से मत खाया करो। ये सूद के जरिए, रिश्वत के जरिए, चोरी के जरिए, डाके के जरिए, कोई भी हराम तरीका है उसके जरिए एक दूसरे का माल मत खाया करो। रह गया मसला हुक्मरान का, व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, ए ला तुदलू बिहा इलल हुक्काम। फरमाया ए मुसलमान हुक्मरानों, इस बेचारी पब्लिक को तुम्हारे साथ काम पड़ेंगे, तुम्हारे दफातर में ये आएंगे और तुम्हारे हर महकमे के साथ इनका मामला होगा। ख्याल करना, इनसे रिश्वत के नाम पर माल न लूट लेना। हाँ जी, रिश्वत के तौर पर इनसे माल, चाय पानी क्या होता है भाई, वो कहते हैं ना जी फाइल को पहिए लगाएं। हाँ, फाइल को पहिए लगेंगे तो ये फाइल आगे चलेगी। वाह वाह वाह, होता है नहीं होता भाई? हाँ, बड़े बड़े पहिए लगाएं इसे, और फिर पहिए लग जाते हैं जब उसमें कायदे आजम जी रिहाइश पजीर हो जाते हैं, उसको पहिए लग जाते हैं। हाँ, इस्लामी रियासत के हुक्मरान की जिम्मेदारी बयान हो रही है। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म व अंतुम तालमून। फरमाया ये रिश्वत खोरी का बाजार बंद करो। रिश्वत खोरी के नाम, ये रिश्वत के नाम पर जो कोई तुम लूट मार कर रहे हो, फरमाया इसका लेन देन बंद करो ताकि लोगों का माल महफूज हो जाए। नंबर 3, लोगों का दीन महफूज करो। अरे दीन कैसे महफूज करना है जरा समझिएगा मेरे भाइयों। फरमाया कि मुमलिकत इस्लामिया के अंदर कुफ्र राइज ना होने देना। जी, किसकी जिम्मेदारी है? मुसलमान हाकिम की। इस्लामी रियासत मदीना के अंदर कुफ्र राइज ना होने देना और कुछ कुफरिया कवानीन को राइज ना होने देना। कैसे? फरमाया उसका तरीक़ाकार ये होगा कि कई कुफार के तिजारती काफले, जब तुम्हारी रियासत वजूद में आएगी तो मुल्कों से तिजारती काफले तुम्हारे मुमलिकत में आएंगे, काफिर ताजिर तुम्हारे मुल्क में आएंगे, वो यहां आकर रिहाइश पजीर भी होंगे, वो यहां आकर लेन देन भी करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि काफिर आकर तुम्हारी मुसलमान बच्चियों से शादियां रचाना शुरू कर दें, या तुम उनके माल से या उनकी गोरी चमड़ी से मुतासिर होकर अपनी बेटियों के रिश्ते उनको देना शुरू कर दो। फरमाया ख्याल करना। आगे जो है ना, थोड़ा सा हम आगे चले तो यहां पे मुशरिक के साथ निकाह की मुमानियत का मसला बयान फरमा दिया। ए ईमान वालो, मुशरिक को ना बेटी देनी है ना उससे बेटी लेनी है। फरमाया मुशरिक के साथ ये मुनाकिहत का मामला और ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह से मुमानियत बयान फरमा दी है। ये आयत नंबर है 221, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। फरमाया अगर कोई मुशरिका औरत, वो खूबसूरत हुस्न व जमाल की पे करो, दिखने में शहजादी हो, फरमाया एक लौंडी और नौकरानी जो ईमान वाली हो, तुम्हारे हक में ये बेहतर है मगर एक मुशरिका शहजादी को घर में कदम ना रखने देना। आगे फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, शिर्क करने वालों को अपनी बच्चियों के रिश्ते न देना, अपनी औरतों के रिश्ते न देना जब तक कि वो ईमान न ले आए। क्यों? मोमिन और मुशरिक का आपस में रास्ता एक हो सकता नहीं है, ये अलग अलग हैं, ये मुतजाद हैं, इनकी राहें जुदा, इनका दीन जुदा, इनकी सोच जुदा, इनकी दुनिया आखिरत की मंजिलें जुदा जुदा हैं। क्यों? कि मुशरिक जहन्नम की जानिब बुलाता है और अल्लाह जन्नत की जानिब बुलाते हैं। यहां पर क्या है? फरमाया मुसलमानों के लिए जो है उनका दीन महफूज करो। ये किसकी जिम्मेदारी है जी? अल्लाह में ऐसे हुक्मरान अता फरमा दे। सूरह बकरा में तो बड़ी तफसीलात हैं, आप माशाल्लाह दुरूस में सुन चुके हैं ये तफसीलात से, ये तो हम आयात पढ़ चुके हैं। अच्छा, साथ साथ क्या है? फरमाया कि मुसलमानों का दीन जो है ना, उनके मुल्क में उन्हीं का दीन राइज करो। उसके लिए इसी सूरत के अंदर हमने देखा तो रोजे के अहकाम व मसाइल बयान हुए। फरमाया कि रोजा चूंकि शाइरुल्लाह में से है, लिहाजा खुलेआम रोजे की कोई तौहीन ना करता फिरे, इसकी रुकावट किसकी जिम्मेदारी है? मुसलमान हाकिम की जिम्मेदारी है। फिर आगे क्या है? फिदिया के मसाइल बयान किए, मरीज के अहकामात बयान किए, मुसाफिर के रोजादार के अहकामात बयान किए, फितरा के मसाइल बयान किए। फरमाया इस्लामी अहकामात को राइज करो। फिर आगे हम थोड़े से चले तो हज के मसले, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। फरमाया ए मुसलमान हुक्मरान, जाग रहे हैं अच्छी तरह,
حج کے احکامات بیان کیے، اشارہ کر دیا مسلمان حکمرانوں اگر چاہتے ہو کہ واقعی 100% تم ریاست مدینہ کے حاکم کہلاؤ تو اپنی رعایا کے لیے حج آسان کرنا. کیا کرنا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ حج ٹھیک ہے نا جی. گرو نانک کے پھیرے آسان ہو گئے اور بیت اللہ کے طواف مشکل ہو گئے ہیں. مشکل نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ قادیان چلے جانا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر مکہ مدینہ جانا بہت مشکل ہو گیا ہے. ہاں جی 13-14 لاکھ میں حج ہو گیا. کیا یہ ریاست اسلامیہ ہے؟ نہیں. مجھ پہ بغاوت کا پرچہ نہ ہو جائے. اچھا ریاست تو اسلام کے نام پہ بنی تھی، لیکن کم از کم حکمران مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے جی. حکمران مسلمان کہلانے کے قابل. نعرے لگاتے رہیں، کھوکھلے نعرے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں، کوئی اور بن رہی ہوگی، ریاست مدینہ کم از کم نہیں بن رہی ہے. اس لیے کہ ریاست مدینہ کی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دکھائی تھی، اور میرے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مدینہ کی ریاست کی تصویر کشی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ویسا بنا دے. تو چنانچہ یہاں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے حج آسان کرو، ٹیکس مت لگاؤ. کیا؟ ٹیکس مت لگاؤ. یا اللہ یہ حج کے لیے کس حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ یہیں پر غریب کی بچیوں کی شادی کیوں نہ کروا دیں؟ ہاں بھائی نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جائیں گے حج کرنے، غریب کی بچیوں کی شادی کروا دیں. یہ بڑی عجیب لاجک بیان کی جاتی ہے. میرے بھائیو یاد کرنا، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح مالدار پر حج فرض ہے. جیسے نماز کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا، ایسے حج کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا. آپ غریب کی بچیوں کی شادیاں کرائیں مگر اللہ کے حکم کو پہلے پورا کریں. نفلی کام بعد میں، فرض پہلے ہے. حج پر جانے کی دو بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ کہ یہ مسلمانوں کا انٹرنیشنل اجتماع ہے، سب سے بڑا اجتماع ہے حج کا. وہاں مسلمان جمع ہوں گے، عالم کفر پر مسلمانوں کی یکجہتی کا اظہار ہوگا کہ سارے مسلمان ایک ہیں، دنیا سے ملکوں سے آئے مسلمان ایک ہیں، اور کافروں کے دل میں اسلام کا غلبہ پیدا ہوگا، ان کے دل میں اسلام کی دھاک بیٹھے گی، روب بیٹھے گا. اس لیے فرمایا مسلمان جمع ہوا کریں ہر سال تاکہ کافر جو ہے وہ بزدل پڑے. کیا کرے جی؟ مسلمان کی طاقت کا اظہار ہو. یا اللہ اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہاں جا کر تم نے اللہ کے حضور مجاہدین کی کامیابی کی دعائیں مانگنی. کیا کرنا ہے بھائی؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سورہ بقرہ میں جہاں حج کے مسئلے بیان ہوئے، یہاں سے جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات بیان ہو رہے ہیں. قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. قتال کرنے والے قتال کر رہے ہوں، حج پہ جانے والے اس فریضہ پہ گئے ہیں، وہاں جا کر کیا کریں؟ مجاہدین کی کامیابیوں کی دعائیں مانگے. معلوم ہوا ہمارا کوئی اجتماع بھی مجاہدین کی کامیابیوں کی دعاؤں سے خالی نہیں ہونا چاہیے. نہیں. اور جمعہ کا اجتماع ہو، درس کا اجتماع ہو، بڑا اجتماع ہو، چھوٹا اجتماع ہو، حج کا اجتماع ہو، ہر میدان میں قتال فی سبیل اللہ کے عروج کی دعائیں مانگنی ہیں. کیا مانگنی ہے جی؟ انشاءاللہ تعالی. اچھا جناب اور آگے چلے تو پھر کچھ اور احکامات. اچھا جی ملک تو ایک بہت بڑی چیز ہے، کیا صرف حکمران ہی کی ذمہ داری ہیں؟ فرمایا نہیں. جو ایک گھر ہوتا ہے نا 4 دیواری، یہ بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہ بھی ایک چھوٹے سے ملک کی نظیر ہے، مثال ہے. جب چھوٹے سے ملک یعنی گھر کے اندر دین کے احکامات نافذ ہوں گے تو پھر محلے میں نافذ ہوں گے، پھر شہر میں نافذ ہوں گے، پھر صوبے میں نافذ ہوں گے، اور ہوتے ہوتے پورے ملک میں چھا جائیں گے انشاءاللہ. گھر سے شروع کریں، گھر سے، بلکہ گھر سے بھی پہلے اپنے 5-6 فٹ کے بدن سے شروع کریں. یہاں سے اسلامی احکامات کا رواج شروع کیا جائے. اس لیے آگے چلے تو فرمایا گھر کے اندر چونکہ خواتین رہائش پذیر ہوتی ہیں، خواتین کے اندرونی مسائل کو بیان کیا، حیض نفاس کے مسئلے بیان کیے، نکاح طلاق کے مسئلے بیان کیے، عدت کے مسئلے بیان کیے، بچوں کو دودھ پلانے کے رازات کے مسئلے بیان کیے. ہاں جی ساتھ ہی کیا ہے آگے دوسرے نکاح کی علتیں بیان فرمائیں. اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے اس کی عدت کا طریقہ کیا ہے، اس کو، اور کسی کو طلاق ہو جاتی ہے، اگر وہ جو ہے نا اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ بھیجنے کے کیا آداب ہیں، کب رشتہ بھیج سکتے ہیں، کب نہیں بھیج سکتے، یہ ساری تفصیلات آپ پڑھ چکے
चुके हैं, सुनी नहीं सुनी आप लोगों ने? दुरुस्त में माशाल्लाह सुन चुके हैं। आगे चलिए जनाब, फिर इसके बाद चले हम तो तीसरा पारा शुरू हो गया। तीसरे पारे के अंदर फिर वही मसला लौट आया जो सूरह फातिहा में बयान हुआ था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह अपनी इबादत में वहदहू ला शरीक है। फिर इसी मसले को अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में 3 जगह बयान किया, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम एक व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद दो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी के अंदर फिर मसला तौहीद आ गया और मसला तौहीद यहां बयान करके फिर क्या है, साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने आयतुल कुर्सी यहां बयान फरमाई। और ये आयतुल कुर्सी क्या है? कुर्सी वाली आयत हदीस शरीफ में आता है ये सय्यदतुल आयात है। 6666 कमो बेश जो आयत हैं कुरान की, उन सारी आयतों की सरदार आयत है। क्या है भाई? सरदार आयत है। आयत क्यों सरदार है? इसलिए कि इसमें मसला तौहीद सारे मसलों का सरदार मौजूद है। इस आयत को मकाम किस मसले की वजह से मिला? नहीं बोलते भाई, मसले तौहीद की वजह से। अच्छा, जिसके दिल में अल्लाह की तौहीद घर कर जाएगी, अल्लाह उसे मकाम रुतबा नहीं देंगे? हाँ भाई, उसका क्या मकाम होगा अल्लाह की नजर में? सुभान अल्लाह। तो चल के अच्छा, आयतुल कुर्सी बड़ी मुबारक आयत, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाजी हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले, फरमाया उसके मरने की देर है, जन्नत में दाखिल होने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए इंशाअल्लाह हम आयतुल कुर्सी का एहतमाम करेंगे, नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। मसले तौहीद, इस आयत को अजमत मिली मसले तौहीद की बरकत से। आगे चले हम थोड़े से, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के अहकामात बयान किए। फरमाया क़यामत आने वाली है, मैं अल्लाह मुर्दों को जिंदा करूंगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी कि मुर्दे जो मट्टी में मिलकर मट्टी हो चुके हैं, अरे उनको कैसे दोबारा जिंदा किया जाएगा? जैसा कि मुशरिकीन मक्का के नजरियात थे, दहरिया के नजरियात हैं, हिंदू सिख के नजरियात हैं कि बस मर के खत्म हो गए, अब इसके बाद और जिंदगी नहीं है। तो कुरान मजीद ने यहां पर 2 वाकयात के जरिए, 2 मिसालों के जरिए क़यामत पर गोया 2 दलाइल मुरत्तब फरमाए हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंताकिया की बस्ती के पास से गुजर रहे हैं, अपने गधे पर सवार हैं, और इस बस्ती को बुख्ते नसर जालिम बादशाह ने तहस नहस कर डाला था, लोगों को कत्ल कर दिया और सारे का सारा शहर मलबे का ढेर हो गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे और यहां की तबाही देखी, तो यहां खड़े होकर अपने आप में गोया कहते हैं, अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, अरे अल्लाह इसको कैसे जिंदा करेंगे? हाँ जी, क्या मतलब है? ये शक नहीं था कि जिंदा नहीं होंगे, यानी अन्ना बमाना कैफा, जी जिंदा तो होंगे, मगर जिंदा होने की कैफियत क्या होगी, तरीका क्या होगा, कैसे अल्लाह जिंदा फरमाएंगे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख मेरे रब ने एक दरख्त की जानिब मोड़ दिया, दरख्त की छांव तले गए, अपने गधे को एक रस्सी से बांध दिया, एक वहां पे तने से बांध दिया, और अपना खाना पानी भी रख दिया, और सोचा कि यहां जरा लेट के आराम कर लेता हूं, ठंडी छांव है, फिर सफर शुरू करूंगा। जूं ही लेटे तो कुरान मजीद ने कहा फ़अमातहुल्लाह, अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। क्या दे दी? उज़ैर अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं जिन्हें यहूदी अल्लाह का बेटा करार देते हैं। क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, तो जनाब इनको मौत वाक़ई हो गई। अच्छा, मौत कितना अरसा? फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, 100 साल तक इसी हाल में रहे, 100 साल तक मय्यत रहे। सुम्मा बअसा, फिर अल्लाह ताला ने इनको जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद अब गुफ्तो शुनीद शुरू हो रही है। क़ाल कम लबिस्ता, अच्छा जरा मुझे तसल्ली करा दें, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कौन है? नबी है ना, पक्की बात है। अच्छा जनाब, अब जरा समझिएगा मसला आगे, अल्लाह की तौहीद भी समझ आए क़यामत के अहकामात के साथ साथ। तो फरमाया सुम्मा बासा, जिंदा किया। क़ाल कम लबिस्ता, फरमाया मेरे महबूब कितनी देर यहां ठहरे हो? आप तो जरा आराम करने आए थे, कितना वक्त यहां गुजरा? क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, या अल्लाह मैं एक दिन यहां रहा। तो जरा जायजा लेके कहा, नहीं दिन भी पूरा नहीं है, जैसे दोपहर में आए थे, असर का वक्त हो चला है, तो दिन भी पूरा
बाज़ यौम, पूरा दिन भी नहीं, अधूरा दिन यहां ठहरा हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया बल नहीं, लबिस्ता मिअत आमिन, आप यहां ठहरे रहे पूरा 100 साल। अच्छा मुझे जरा मसला बता दें, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कब्र में दफन हो चुके थे या मैयत बाहर थी? जी बाहर थी। अभी तक तदफीन हुई थी? नहीं हुई थी। ये तो यकीन है कि ये अल्लाह के क्या थे? नबी थे। इसलिए कि अल्लाह हम कलाम हो रहे हैं इनसे, हम कलाम हो रहे हैं इनसे। कितना ठहरे हो या अल्लाह? इतना ठहरे हो। फरमाया नहीं इतना ठहरे हो। तो ये क्या है? अल्लाह के पैगंबर हैं। अच्छा, और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कितने ठहरे? कहते हैं जी दिन, जबकि कितना ठहरे थे? 100 साल। मुझे जरा बताएं आपका ईमान क्या कहता है? अल्लाह के नबी गलत बयानी कर सकते हैं? जी नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं हो सकती है। तो फिर यह मसला साबित हो गया कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल गुजरने का पता चला नहीं है। अभी दफन नहीं हुए, कब्र नहीं है, जमीन के ऊपर हैं, 100 साल गुजर गए और मैयत थे। तो दुनिया के हवादिस का पता लाजमी बात है। एक साल में कितने मौसम होते हैं? 12 नहीं कह देना भाई कितने होते हैं? 4। सुबहान अल्लाह, हमारे हुक्मरानों के यहां तो 12 मौसम है नहीं इन्ना लिल्लाहि। 4 मौसम एक साल में, और साल कितने गुजर गए? कितने मौसम गुजर गए? 400 मौसम गुजर गए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर। 400 मौसमों में आंधियां नहीं चली होंगी, बादल नहीं गरजे होंगे, बारिश नहीं बरसी होगी, परिंदे दरख्त पे नहीं चहचहाए होंगे, काफिलों का गुजर नहीं हुआ होगा, सर्दी गर्मी के मौसम नहीं आए होंगे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तगय्युरात ज़माना का पता चला तो मालूम हो गया कि अंबिया हूं या गैर अंबिया हूं, जिंदा हूं या हालत वफात हो, कोई आलिमुल गैब हो सकता? गैबदान सिर्फ कौन है? गैबदान सिर्फ कौन है? कब्र से बाहर हैं तो भी जमाने के हालात का पता न चला, तो जब कब्र में कोई दफन हो जाए तो फिर कैसे पता चलता है कि कौन सा मुरीद आ रहा है और जेब में क्या ला रहा है? क्यों भाई? पीर साहब को पता चलता है, पैगंबर को पता ना चला तो मालूम हुआ किसी पीर साहब को भी पता चल सकता नहीं है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे पैगंबर, अच्छा आपने जिस मसले की तरफ तजस्सुस का इजहार किया था जरा उस तरफ आइए। फरमाया फंदुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, सबसे पहले अपना खाना संभालिए और जो आपने मशरूब लिया हुआ था, पानी था या शीरा था जो भी, फरमाया वो संभालिए। जब देखा लम यतसन्ना, खाना गर्म था तो गर्म रखा हुआ है, पानी ठंडा था तो ठंडा रखा हुआ है, और उसमें कोई तब्दीली वाकई कहो अल्लाह कादिर हैं, अल्लाह कादिर हैं। अच्छा एक मसला और बताते हैं अगर नाराज ना हो तो। प्रोपेगंडे बड़े होंगे, बड़े प्रोपेगंडे होंगे, लेकिन देखें हम यहां प्रोपेगंडों के जवाब देने के लिए नहीं बैठे। हमने इंशाअल्लाह अपनी मंजिल का सफर तय करना है। इंशाअल्लाह हमारी मंजिल है, हमने मंजिल की जानिब इंशाअल्लाह गामजन रहना है। कोई कुछ भी कहता रहे, हमने इंशाअल्लाह अपनी मंजिल से नजर हटानी नहीं है। इंशाअल्लाह ये अकीदा तौहीद की ज़रबें लगती रहेंगी इंशाअल्लाह, हाँ लगती रहेंगी। हमारा ईमान है अल्लाह के नबी बाद अज़ इंतकाल कब्र के अंदर हों तो भी महफूज हैं, कब्र से बाहर हों तो भी महफूज हैं। अरे अंबियाए किराम की बात तो बड़ी बात है। कुरान ने यहां इशारा फरमा दिया, जिस खाने और पानी ने नबी की खुराक बनना था, अल्लाह ने 100 साल में उस खुराक को भी खराब नहीं होने दिया, उस खुराक को भी तब्दील। फिर अंबिया के बदन को कैसे मट्टी खा सकती है? नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह। आगे चलिए, फरमाया मेरे पैगंबर जी ये बात समझ आ गई, वंदुर इला हिमारिका, अपने गधे मुबारक को संभालिए। नबी की सवारी मुबारक होती है भाई, समझ आ गई है? अपने गधे को संभालिए, गधा कोई नहीं है। फंदुर, हाँ वंदुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नास, फरमाया हम इसको लोगों के लिए निशानी बनाने लगे, इससे हम मसला समझाएंगे कैसे हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। वंदुर इलल इज़ाम, अब जरा देखते जाएं हड्डियां। गधे पे मौत आ गई और 100 साल में गधे की हड्डियां मट्टी हो गई, उसकी खाल मट्टी में मिल गई, बाल मट्टी में मिल गए, कुछ बाकी न रहा, सब कुछ खत्म हो गया। तो फरमाया मेरे पैगंबर जी देखते जाओ, इधर से क्या है, उसके आज़ा हड्डियों के
चूरे और टुकड़े निकलना शुरू हुए और आपस में जुड़ने लगे। जुड़ते जुड़ते हड्डियों के जरिए उसका ढांचा तैयार हो गया। फिर उस पे अल्लाह ताला ने गोश्त का लिबास चढ़ाया, फिर उस पे चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें रूह डाली और जिंदा करके हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने ला खड़ा किया। फरमाया वंदुर इलल इज़ामी कैफ नुनशिजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू। जब ये बात हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने जाहिर हो गई कि यूं यूं अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेंगे, ऐसे जर्रात को जमा करके लाएंगे, काल तो फिर बोल उठे अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे अल्लाह जी आलमो, मैं यकीन रखता हूं इस बात पर कि अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर है। क्या है भाई? अल्लाह की कुदरतें हैं। फिर आगे मसला चला, हजरत जी कैसे मुर्दों को जिंदा करेंगे? फरमाया और तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी एक वाकया बता देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह सवाल किया, रब्बी अरिनी कैफ तुहियल मौता, मेरे मौला जरा मुझे दिखाइए आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे। अरिनी अरिनी, आंखों से दिखाइए, ऐनुल यकीन हो जाए, आंखों से देखना चाहता हूं। काला अवलम तुमिन, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब खलील पैगंबर क्या इत्मीनान नहीं है, यकीन नहीं है? काला बला, मेरे मौला क्यों नहीं? वलाकिन यत्मइन्ना कल्बी, पर कल्बी इत्मीनान चाहता हूं, यकीन तो है आप मुर्दों को जिंदा करेंगे। कहते हैं ना लैसल खबरो कल मुआयना, कान सुनी बात और आंखों देखा हाल बराबर होता? या अल्लाह यकीन तो है मगर आंखों देखा हाल कुछ और ही हैसियत रखता है। काला फखुद अर्बअतम मिन अत्तैर फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया। फरमाया 4 परिंदे पकड़ लीजिए, कोई भी परिंदे थे, 4 परिंदे पकड़ लीजिए, इनको अपना आदि बनाइए, आदि फसुरहुन्ना इलैका, आपकी एक आवाज पे उड़ते चले आए। परिंदे आदि हो जाते हैं ना बाज लोगों के, बड़े आदि होते हैं, बड़े वफादार हो जाते हैं। फरमाया आपके आदि हो जाएं कि आप जूं आवाज लगाएं उड़ते चले आएं। जब आदि हो गए फरमाया अब इनको क्या कीजिए, ज़िबा कीजिए और इनका गोश्त कीमा बनाइए, हड्डियों के टुकड़े कर दीजिए और इनके पर खाल हर चीज उसमें मिला दीजिए। 4 परिंदों के जर्रात आपस में मिक्स कर दीजिए और इस पहाड़ी पे थोड़ा सा, उस पे पहाड़ियों पे इनके कीमा का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जाकर रख दीजिए। सुम्मा दुहुन्ना, फिर एक जगह खड़े होकर फिर इनको आवाज लगाइए, यातीनका साया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई तो ये कीमा और हड्डियों के जर्रात अपनी अपनी जगह से उठे और हर परिंदे के जर्रात आपस में जुड़े और वो जीता जागता परिंदा बनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पे वहां पहुंच गया। फरमाया हाँ ऐसे ही होगा कि लोगों के जिस्म के जर्रात मट्टी खा चुकी होगी, खत्म हो चुके होंगे, मट्टी में मिल चुके होंगे। मैं अल्लाह तबारक व तआला एक आवाज पर सबको जिंदा करके हशर के मैदान में ला खड़ा करूंगा। वालम वालम, और अल्लाह पाक ने फरमाया वालम, ए मेरे खलील यकीन रखो, अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, कि अल्लाह ताला सब कुछ करने पर क्या है, हाँ अजीजुन गालिब भी है और ये करना अल्लाह की हिकमत से खाली नहीं है। यहां पर क्या है जी, क़यामत की मिसालें बयान फरमाई, लेकिन साथ ही फरमाया क़यामत आने वाली है, कोई तैयारी भी की है? तवज्जो है? अरे मेरे नबी के उम्मतियों, क़यामत आने वाली है, कोई तैयारी भी की है? या अल्लाह कैसे तैयारी करें? फरमाया सदका दिया करो, सूद न खाया करो। सदका दिया करो और सूद, ला तुबतिलु सदकात बिलमन्नी वल अज़ा। फरमाया रियाकारी के जरिए या फकीर मोहताज गरीब को तकलीफ और इज़ा पहुंचाकर अपने सदकात खराब न किया करो। पता ये कैसे होते हैं? एक थैला 10 किलो आटे का और जनाब ये गरीब को देने लगे हैं और 10 सखियों की जमात उस थैले पे हाथ रख के सेल्फी ले रही है। 10 सखियों की जमात, 10 लोग सखी खड़े हैं और जनाब सेल्फियां ली जा रही हैं। बिल मन्नी वल अज़ा। ईमान से बताएं, इसमें रियाकारी तो नहीं है ना? अच्छा रियाकारी, अच्छा इस गरीब की तजलील तो नहीं है ना? इस बापर्दा खातून की तजलील नहीं है गरीब जिसको एक थैला, अरे थैला तो बड़ी दूर की बात है, साबुन की टिकिया पर भी 10 लोग सेल्फियां ले रहे होते हैं कि हमने गरीब को साबुन की टिकिया दिया, हमने ताउन किया है। फरमाया अपने सदकात को तबाह बर्बाद न करो और साथ ही आगे फरमाया सूद न खाया करो। क्यों? यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदकात, इसलिए कि अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और अल्लाह सदकों की तरबियत करते हैं। हदीस शरीफ में आया जैसे बकरी अपने दूध पीते बच्चे को दूध पिला पिला के जवान करती है, अल्लाह ताला ईमान वालों के इखलास वाले सदकों को पाल पाल के जवान करेंगे। क़यामत के रोज आएंगे तो ओहद पहाड़ के बराबर इनके सदके
हो चुके होंगे। फरमाया ऐसे अल्लाह तबारक व तआला इनके सदकात को पालते हैं। लिहाजा फरमाया अच्छा आमाल करने हैं, लेकिन देख लो आमाल के साथ लेन देन ये भी आला अखलाकियात में से है। लेन देन आपस में साफ सुथरे रखो। नमाजी बन चुकी हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लेन देन का मामला खराब हो। कहीं ऐसा है तो नहीं आजकल? हाँ जी, ठीक है ना जी। लोग कहते हैं जी ये तो दीनदार थे। हाँ जी, दीनदार हैं, दीनदार ऐसा करते हैं। भाई याद रखिए, अगर किसी ने किसी को धोखा दिया तो इसमें दीन इस्लाम का कसूर नहीं है, ये खुद बहरूपिया है। इसने दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है, इसने इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसा किया है, वरना इसका ये जाती फेल है। इस्लाम इस चीज की तालीम नहीं देता, इस्लाम ये तालीम देता है। फरमाया लेन देन अगर कर रहे हो आपस में, उसको लिख लिया करो। वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, फरमाया एक अदलो इंसाफ वाला बंदा आए, कातिब, और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा लिखे, उस पर गवाह कर लिया करो। कहते नहीं जी हमें एतबार है, एक दूसरे पर एतमाद है ना। हम क्या कहते हैं, क्या है भाई? अच्छा अगर कोई कह दे दोस्त को भाई ठीक है मैंने आपको ये कर्जा दिया लाख रुपया, जरा ऐसा करते हैं स्टाम्प पेपर लिख लेते हैं, दोस्त नाराज होता है नहीं होता? अच्छा आपको एतबार ही नहीं है मुझ पर, एतमाद ही नहीं है मुझ पर। कुरान ने क्या कहा? एतमाद करना अच्छी बात है, न करना ज्यादा अच्छी बात है। न करना, कल कला क्या होगा कि यही तहरीर न लिखना तुम्हारी दोस्ती का कातिल बनेगा। कल जो एतमाद टूटेगा फिर वो कभी बहाल नहीं होगा। लिहाजा ये बेहतरीन एतमाद का मामला है कि तहरीर लिख लिया करो ताकि किसी का माली नुकसान ना हो। माली नुकसान होगा तो ईमान का नुकसान होगा। इसके बाद यह है या अल्लाह ईमान बचाएं। फरमा ईमान की फिक्र करो, आमाल की फिक्र करो। आमनर रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, सूरह बकरा के आखिर में चलकर फरमाया कि आमाल भी कीमती हैं और साथ साथ क्या है, ईमान भी बहुत कीमती है। रसूल भी ईमान लाए, जिस यानी रसूल ईमान लाए कुरान पर, अपने रब पर ईमान वालो, तुम भी रसूल पर ईमान लाओ, कुरान पर ईमान लाओ, रब पर ईमान लाओ। हाँ जी, फरमाया ईमान की फिक्र करो, लेकिन ईमान के साथ साथ क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ दुआओं का भी सिलसिला जारी रखो। क्यों कि इंसान से कोताहियां होती हैं, और जहां कोताहियां होती हैं इनका इजाला कैसे होगा? मुआफी मांगने से। कैसे होगा जी? मुआफी मांगने से। तो फरमाया रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलता। ये सारी दुआ सिखा दी है। या अल्लाह कोई जानबूझ के गलती हुई तो माफ कर देना, भूले से हुई तो भी मुआफ कर देना। अल्लाह ताला से दरगुजर की दुआएं की जा रही हैं। साथ ही मैं अर्ज करूं ये रुकू बड़ा अजीम है। वैसे तो सूरतुल बकरा सारी अजीम है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरतुल बकरा सिनामुल कुरान, ये कुरान की कोहान है। कोहान चोटी, जैसे पहाड़ होता है उसकी चोटी ऊपर ऊपर होती है। फरमाया सूरह बकरा कुरान की क्या है? चोटी है, चोटी है। फरमाया नुमाया है इसलिए कि इसके अंदर अहकामात बहुत ज्यादा बयान हुए हैं। और साथ ही फरमाया कि जो शख्स सूरतुल बकरा से ताल्लुक जोड़े रखेगा अल्लाह उस पर जादू का असर नहीं होने देंगे। हदीस शरीफ में आया खासकर सूरह बकरा तो बिलउमूम है, और बिलखुसूस ये जो आखिरी रकू है सूरह बकरा का, लिल्लाहि मा फिस समावात से लेकर आखिर तक, फरमाया हदीस में है कि जो शख्स सुबह शाम एक एक मरतबा ये रकू पढ़ता है अल्लाह उसे भी जादू के असर से महफूज रखते हैं। हाँ जी, 1 मिनट लगेगा भाई, क्या ख्याल है? ज़बानी याद है तो पढ़ लिया करें, नहीं तो कम से कम देख करके पढ़ लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला इस मूजी रूहानी मरज से महफूज फरमाएंगे। सूरतुल बकरा यहाँ मुकम्मल हुई, जिंदगी रही तो मंजिल तुम्हारी आगे चली गई है आले इमरान में। कल इंशाअल्लाह ताला आले इमरान का सबक हम मुकम्मल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहा सुना अपनी बोलो मंजूर फरमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु